हमारी वॉल भी थी ना यहाँ पे, हमारी वॉल। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। ये ब्रॉडकास्ट लेकर हम इस वक्त आए हैं क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं हम। आज सिक्किम में बहुत ज्यादा जो है चिंताजनक तस्वीरें देखने को मिली है। So basically, what has happened is reports have come that a cloudburst may have happened. So we had an incessant rainfall, or rather a heavy rainfall, was monitored between Singing and Chungha. So in between that, we presume that there might be a cloudburst. There might have been a cloudburst, but it's being determined, and as like studies is going on. But definitely, we do understand that there was plenty of water level rise, just starting from Lachin itself, right? So we have had the information from the CWC, which is monitoring the water level, which monitors the water level, and IMD issues the warning for rains. So in both the days, both the occasions, IMD had issued a orange alert, so which we had disseminated to all the authorities within the state. So on one specific day, there was a red alert from the IMD. Was that the Yes. day the cloudburst happened? Sir? Yes, that was the day when we presume that the cloudburst did occur, because nobody has seen where the cloudburst occurred actually. But as far as the reports are concerned, all the rivers, all the rivulets which feeds the Tista basin had swollen up. So that was one of the main reasons why the Tista level rose drastically. But right now, the Tista level, water level has just decreased drastically, and it's below the danger level. And in fact, we are monitoring the Tista all throughout, and there's a fluctuation basically. If it rains heavily, or if there's a sudden downpour in the higher reaches of Mangan district, then the Tista river does definitely swell up. And in fact, there's another Kanaka river also which feeds the Tista. So that had also swollen up during that time. So thank you very much. जो स्टेट डिजास्टर फोर्स हैं उनके जो ऑफिशियल्स हैं, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि यहाँ मंगन में खास करके ये शक जताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि कहीं कोई क्लाउड बर्स्ट भी शायद हुआ है। अगर कोल डेजर्ट एरिया में हुआ है तो अभी कंफर्म कर पाना कि आखिर कितने लोगों की जान गई होगी या कितने मिसिंग होंगे, वो इस वक्त बेहद जो है वो मुश्किल है। और सिक्किम के हालात लगातार जो है वो बेहद इस वक्त खराब बने हुए हैं। लेकिन अगर आप पूरे पूर्वोत्तर के ही हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, वहां के अगर मैं आपको इस वक्त अपडेट्स दे दूं, तो वहां से जो बातें आ रही हैं कि ओवरऑल जो डेथ टोल है वो 44 के पार नजर आ रहा है। इसमें असम में करीब करीब 19 लोगों के मारे जाने की खबर है, अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय में 6, मिजोरम में करीब 5, त्रिपुरा में 2, नागालैंड, मणिपुर में जो पहले से ही 2 साल से जिस राज्य में बहुत ज्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, वहां पर बाढ़ की वजह से 20,000 और लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। तो एक तो असम में ही अकेले अगर हम देखें तो 21 जिलों में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों के डिस्प्लेस्ड होने की खबर है। मणिपुर में ओवर 1.56 लाख पीपल जो हैं वो अफेक्टेड हैं। और इन सभी राज्यों में अगर हम देखें तो जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफेक्टेड है, वो क्रम्बलिंग है, हाईवेज वो नीचे उनकी हालत खराब हो रखी है, हाईवेज के साथ साथ ब्रिजेस टूटे हुए हैं। और आपकी जितनी भी यहाँ लोगों के स्ट्रैंडेड होने की खबर आ रही है, ये समर सीजन है, गर्मियों का सीजन है, इस वक्त जाहिर सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाते भी हैं। यहाँ एक सुरक्षा कर्मी की भी जो आवाज है, जो उन्होंने कमेंट्स दिए थे कि किस तरीके से आज 3 अमेरिकी नेशनल्स को भी यहाँ से इवैक्यूएट किया गया इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस में, जो HADR ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनकी बात भी आपको हम सुना देते हैं। And I'm at the location where there was a massive landslide which occurred on the night of 1st of June. But as a prelude to this, I must tell you that very, very heavy rains have been experienced in this area from 30th of May onwards.
and the rains were so heavy and unprecedented that if you take your attention, which is on this on the other side of the mountain, you can see this huge waterfall and the huge river which has been created on the landslide, which never existed before. And because of which we carried out certain precautionary evacuations. However, this area being stable and totally nothing was anticipated here, so there were around 50 to 70 personnel who were residing here. But on the unfortunate night of 1st of June, there was a very heavy landslide, because of which we had to carry out evacuation. But unfortunately, 9 of our personnel, the nature got the better of them. And in this period, in the last 3 days, we mobilized all our resources, and we've been able to recover 3 mortal remains. And as you can see, right now also this area is active. It's not just the army, it is the civilians and also the team of NDRF which is here. And it is a collaborative effort, and we are trying to search for the balance 6 personnel of ours who continue to be missing. Not only that, we have rendered all possible support to the civilians here, the stranded tourists. We have been able to evacuate around 30 of them yesterday. And also we've reached out to the tourists who are stuck in Lachin, which is a village north, and we have assured them that all possible assistance will be given to them. It is anticipated that approximately maybe tomorrow or day after, the weather might improve, and as and when it improves, it will be our first priority to take out all these stranded tourists here while we continue our efforts to look for our missing personnel. Thank you. तो ये इंडियन आर्मी की तरफ से आप अपडेट्स देख रहे थे कि 1 जून को जो भारी भूस्खलन हुआ उसमें 9 पर्सनल की जान गई, और पिछले 3 दिनों में 3 जो हैं डेड बॉडीज, पार्थिव शरीर उन्हें रिकवर किया गया है, लेकिन 6 पर्सनल की अभी भी जो है उनकी डेड बॉडीज को रिट्रीव करने के लिए जद्दोजहद जारी है। और हालात लगातार, क्योंकि वहाँ बारिश भी हो रही है लगातार और हालात खराब बने हुए हैं। पहली दफा नहीं है जब सिक्किम में इस तरह के भयावह फ्लड्स हो रहे हों, भूस्खलन हो रहे हों। कुछ दिनों पहले ही वहां ग्लेशियल लेक के फटने की वजह से भी बहुत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। 2010 में वहां पर क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से हमने जो है वहां पर खुद कवरेज करने के लिए मैं पहुंची थी, और लाचुंग वगैरह इलाके में भी जो है हमने कवरेज की थी। तो एक तो वहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है लगातार कि किस तरीके से आप वहां पर जल्दी जो है ऑन, जिसे कहते हैं ऑन, आप वॉर फुटिंग पर काम करके इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस जो है आप ला सकें। और इन पूरी तस्वीरों को देखना जरूरी है, क्योंकि शायद अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों में ये खबरें खो जाएं, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई खबरें लगातार नहीं आ रही हों। मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में अभी हमने एक दिन पहले ही डिटेल्ड बातचीत की थी ईस्ट मोजो के ही एग्जीक्यूटिव एडिटर अमित कुमार जो गुवाहाटी में है, और पर्यावरण जर्नलिस्ट निधि जामवाल जो मुंबई से मेरे साथ जुड़ी थी, और दोनों ने बहुत डिटेल्स में बताया था कि किस तरीके से जो पैटर्न ऑफ रेनफॉल्स हैं वो चेंज हो रही हैं। उसमें रेनफॉल्स की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लेकिन जो लैंडस्लाइड्स है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, उनका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स जिनके जरिए जो है प्रेस ऑन करके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, सबसे पहले आप जो बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, उनको आप निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो है जो एबल बॉडीड लोग हैं उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो इस वक्त लोगों से अपील है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और उसके बाद सिक्किम में जो हालत बने हुए हैं, लोगों को हमारी हेल्प की जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है। आज एक दूसरी बहुत ही दुखदायक खबर आई है कर्नाटक से, बेंगलुरु से। वहां आरसीबी के मैच के जीत के जश्न के दौरान जिस तरह से स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुआ चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर, उसमें करीब 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस देश में स्टैम्पीड्स इतने कॉमन हो गए हैं, और लेकिन जहां उस पर हम बात करेंगे और उस पर हम कवरेज भी लेकर आएंगे। कभी कुंभ, कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पूरी की पूरी तरह उस तरह से हम फेल्ड नजर आते हैं जहां तक क्राउड कंट्रोल का सवाल होता है। लेकिन मैं चाहूंगी कि दर्शक ये ना भूले कि इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लड्स की स्थिति है, जिसमें लोगों को मदद की जरूरत है, हर संभव मदद की जरूरत है। कल हम देख रहे थे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो कैंप्स वगैरह में जा रहे थे, लोगों को अश्योरेंस दे रहे थे, और अभी तक जो है डेथ टोल वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आज हेलीकॉप्टर से इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से मी 17 जो हेलीकॉप्टर्स है उनके जरिए 33 फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, और इनमें 3 जो हैं आपके अमेरिकी नेशनल्स भी शामिल थे। बहरहाल इस वक्त मैं इस ब्रॉडकास्ट को यहीं खत्म करूंगी, और लोगों के साथ इसी अपील के साथ में कि जहां तक संभव हो सके आप प्लीज इन लोगों की मदद करें।
लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अभी भी बहुत ज्यादा कमियां आ रही हैं, खामियां आ रही हैं। इंक्रोचमेंट के इश्यूज शहरों में, कई जगह ये मैन मेड क्राइसिस है, कई जगह अर्बन फ्लडिंग्स हो रहे हैं। ड्रेनेज पैटर्न्स हमारी अभी तक अपडेटेड नहीं हुई है। गुवाहाटी की ड्रेन्स को अगर आप देखें तो शायद 1930s के बाद से अभी तक वो सीवर सिस्टम्स अपग्रेड नहीं हुए हैं। और पहाड़ों में जिस तरीके से रैंपेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस इकोलॉजिकल डिजास्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर, इन्हें लेकर बहुत ज्यादा गहन सवाल पूछने की जरूरत है, संवेदनशील होकर सवाल पूछने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे पास ना ये पहाड़ बचेंगे, ना ये जंगल बचेंगे, और ये सारे के सारे जो इस तरह के राज्य हैं, हिली स्टेट्स है, वो टापू में ना बदल जाए, वो कहीं बह ना जाए। क्योंकि ये जो पानी की तस्वीरें हैं, आप एक बार फिर से देखिए आखिर ये कितने इस वक्त जो हैं भयावह हैं। सुनिए आप जरा इन आवाजों को पानी की। हमारी वॉल भी थी ना यहाँ पे, हमारी वॉल। ये कितना बड़ा पत्थर है। तो प्रकृति के खौफ को आप इन तस्वीरों के ज़रिए महसूस कर सकते हैं, इन आवाज़ों को सुनने के बाद में। पहाड़ों की हालत देखिए, पहाड़ों में जाते हुए जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, सड़क हैं, जिस तरीके से भूस्खलन हो रहे हैं। लैंडस्लाइड्स आज निश्चित रूप से एक बहुत खतरनाक एक पैटर्न हो रखा है पहाड़ों में, और इतने लैंडस्लाइड्स के हमारे डेटा भी हमारे पास साफ तौर पर हमें नहीं मिल रहे हैं, मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, उनके साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो लैंडस्लाइड्स से कैसे जूझे, वो आपकी लाइव्स को इम्पैक्ट करते हैं, लाइवलीहुड्स को इम्पैक्ट करते हैं, टूरिज्म को इम्पैक्ट करते हैं। पूरी तरीके से इन मामलों को सोचने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ जो सेना के जवान, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम सुरक्षा कर्मी जो बिल्कुल जमीन पर तैनात हैं, वॉर फुटिंग पर काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ के लिए, उन लोगों को हमारा सलाम जरूर है। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद देम। जाते जाते मैं आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ जा रही हूँ ऑपरेशन जल राहत 2 की, जो इस वक्त जारी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां जहां बाढ़ की भीषण सूरत हाल की वजह से लोगों का जीना इस वक्त मुहाल हो गया है। कीप पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कीप पीपल ऑफ असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम इन योर थॉट्स एंड प्रेयर्स। और मेरे YouTube स्टेशन के आप बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे भी इस तरह के हम कवरेज को आप तक पहुंचाए तो आप अलर्ट हो सकें। और उस कॉन्वर्सेशन को जरूर देखिएगा विद अमित कुमार ऑफ ईस्ट मोजो एंड निधि जामवाल मेरे YouTube स्टेशन पर ही है, जहां आप समझ पाएंगे कि आखिर ये जो फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं भयावह, आखिर वो क्यों हो रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपको मैं छोड़ जाती हूँ ऑपरेशन जल राहत 2 की इन तस्वीरों के साथ। नमस्कार, आदाब।